A very warm namaskar to you all. I hope I'm audible to everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, Thank ma'am. you. Yes, ma'am. Thank you. So children, today we have come on this platform so that we can bring the session to you and help you to choose your subjects, your stream that you want to study after your grade 10 or class 10 for a very successful life and a successful and a fulfilling career. Children, here I would like to quote Robert Schuller, who said, "Build a dream and the dream will build you." When we are willing to not only envision our dreams, but also are willing to go after our dreams, most of us, we will very soon realize that the pursuit of these dreams will help to build us as well. And I would like to say here that we should enjoy each step of the way on the journey that we take towards fulfilling our dreams. And here, what are our dreams? Here, our dreams are our career, our choices in life, our options in life, which will help us to make a right decision for a successful career. Because in a sense, everything that we do on the way to reaching our goal will be what we remember most about reaching them. Take each step of your journey as it comes, and don't forget to delight in the fact that you are able to take these steps. And many a times or sometimes things will get hard, and sometimes you will face roadblocks. But remember, these roadblocks, these challenges that you face on your way to your dreams will not only strengthen your resolve and your other skills, such as problem solving skills, but also it is these challenges, these roadblocks, these choices that will help you in making your right choices. As you move ahead in your life, you're going to be followed with a lot of questions. Sometimes you're not going to be sure whether it's right or it's wrong. But one question that is sure to pop up from time to time, whenever you reach some important milestone in your life, is that, what are you going to do after this? What have you planned? And at times, many students might find this question very frustrating and intimidating. Why? Because if they are not prepared or they are not clear about their stream, their choice, their subjects, or career ambitions, or if they are not sure how to build their dream career, then this question is going to be very frustrating. So once you are done with your class 10 or after your class 10, you are going to stand at the first crossroad of your life. And that is when the question will pop up again, what to do next? There will be two choices always. One, will you take that road which is leading to a less stress, less hard work, less study, or you will travel that extra mile like many others for a fulfilling life and career? We all know this, that with the end of school life begins another life, begins a life where you have to start taking some important decisions. So it is very important to have a clear career plan for a smooth passage or a smooth transition from your school life to a college life that will further be followed by a very happy professional life, provided you have taken the right subject, you have made the right choices after your grade 10. So this is the most important stage, phase, transition of your life. And if you don't have an in-depth knowledge of the subjects or of the streams or of the choices that you have ahead of you,
sometimes some of you may end up in a career that is not actually made for you, and that may lead to unhappiness. It is common among students. It comes in everybody's life, my life, your parents, everybody. You ask anybody, this stage does come in everybody's life. When students are going through this transition phase and are often influenced by some misinformation and end up making wrong decisions. That is why an individual's decision making is the most sought after skill in each and every career. No matter which job you do, your success will be based on the reasoning applied behind the decisions you take. And the first decision that you have to take is after your 10th grade. Before 10th, before you passed out from your class 10, the only choice that you made was choosing your second language or choosing the second option or a sixth subject. But now after 10th, the game changes, the story changes. And for the first time, you have the steering wheel of your career, of your life. Because after you give your class 10th exams or board exams, or you are done with your class 10, you face the first biggest decision in life. Which stream to choose? What subjects to study? Have I chosen the right stream? Have I chosen the right subjects? Is this stream going to help me build my career? Am I going to be successful in life with these subjects, with this stream? And this could make or break your career if not taken the right stream or the right subjects. Today, you are standing on the threshold of your first big decision-making moment. And today, we have brought this platform for you to make it easier, to help you build your dreams. During this session, we are going to look at some common issues faced by students and their parents. We are not going to influence you. We are not going to force you to choose a particular stream or particular subjects, because we believe every stream has its own charm and value. Some people may stereotype saying science always has an upper hand on commerce or humanities, whereas some may say or defend saying that arts is for artists, humanities is for artists and deep thinkers, commerce is for analytical brainers. So today, to help you, we'll try to give a comprehensive overview of the importance of any stream that you choose after your 10th grade or in your for your further studies. And you can plan your bachelor's or master's in future. Please remember, we are not influencing you or asking you to start thinking for your bachelor's or master's early on from 11th grade. No, but you can always plan for it. Once you finish your high school, your class 12, the idea is to take a proactive initiative so that we can help you to understand where you want to go, what you want to do in your life, what is your career, what is your aim, what is your ambition, what actually really you want to do, so that you can lead a satisfied and a fulfilling life. You are happy with what you are doing. And for this, we are going to help you. Before we begin, I would once again like to reiterate or advise that never choose a stream, never choose subjects because your parents or your guardians are forcing it down on you, or your neighbor, or a relative, or an aunt, or your friend has suggested it because since she or he thinks it's a job-oriented subject, or because your friends are keen on selecting that subject so that you can all stick together for whole life. Remember, it never happens. So now, when in this confused state, when this transition phase more appears like a complex maze with so many exits and doors, entries,
entry points. You don't know in which direction to go. And and in that maze, it becomes difficult to find the door which can lead you towards your dream, your career, your right stream, your right option, your right subjects. So today we are going to look at this whole confusion, whole scenario, and we are going to help you to connect these doors that will lead you towards your fulfilling dream, your career, your choice, your stream, and will help you. So we have brought this platform, and today we have with us Mr. Keshav Agrawal, who is an educationist and who has always helped children understand their choices, their careers, their ambitions, and help them to choose a right career, a right stream. Mr. Keshav Agrawal has been doing it for decades and is also a very famous and known personality who is often visible on NDTV and other national news channels also, always giving his point of view, giving his helping children understand their priorities in life related to education. So thank you all for joining us, and this is over to Mr. Keshav Agrawal. Thank you, ma'am. Thanks a lot for your words, and each of them meant a lot. And as you said, one of the important things that nothing should be forced upon. So before even we go ahead today with the options, discussions vis-a-vis new education policy, because now things will change in a year or two due to this new policy as soon as they become effective. And sooner or later, we'll see all of them coming into place. It is just the pandemic which has stopped the things, but all of them have been fixed, policies have been set. So now with coming years, this batch will be the first one to get a hang of these things. So today, while we will be discussing various career options and most importantly, the subjects and what NEP has done. Now, how new education policy has changed a lot of things, and it has broadened the scope for each student. So some time back, which a arts or a commerce student could not even think of, today that has been made possible, and in coming years it will touch many areas. So before we go ahead, we would like actually to get one point, and this is one of the important things before you choose out on anything. There are two things we would like to stress upon before we go and discuss this option. These are two important points which many times we don't realize, and that is what you need to find out, because without your diagnosis you cannot have things right. Now these two words are there, strength and interest. Now many times you will see this is something which comes easily to us, interest. मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, I want to keep watching, I want to do this, I want to do this. But you may not have that strength. What do I mean by that? Your aptitude or skills may not be that good for a particular thing. I'll give you an example of a person. If you will Google sometimes, a very famous commentator, Harsha Bhogle. Now, if you read about Harsha Bhogle, he's from IIMs, and he has a vast and in-depth knowledge about cricket. He's so passionate, and he's one of the biggest or one of the most followed commentators. Generally, you will find people from cricket fraternity doing this. Apart from Richie Benaud, I remember this is one of the person. So if you see his interest in cricket, it is too much. But if you ask him to play cricket, I don't think he will even come 1% or 2% near of the knowledge. So what do you mean? His interest is in cricket, but his strength is not playing cricket, right? His strength is oratorship, knowledge. So one thing you have to keep, you can always make strength as your interest and do well. You can never make your interest as strength. Now, if Harsha Bhogle decided, nahi yaar, mujhe to Indian team mein aana hi aana hai, mujhe kisi bhi tarah 11 mein aana hai, uski ye janam entire life nikal jati, he would not might have got into the Indian team, because playing was not his strength. His strength, interest was in cricket. He knew everything, but not playing. So now, most of the students have a big dilemma with maths
or no maths. ये इतना बड़ा डिलेमा होता है कि हमें मैथ्स लेना है या नहीं लेना, लेना है या नहीं लेना. कई लोगों को है मैथ्स छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम है, करेंगे क्या, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट गॉन. और कई बार हम ये जज नहीं कर पाते कि थियरी इज आवर स्ट्रेंथ और मैथ्स. So probably I'll just give you a very simple example. You can always take up SST, bio and chemistry and take your maths physics. If you do 2-year diagnosis, you will come to a very good conclusion. Now suppose you are good at learning. So say you are spending on an average 3 hours in SST and scoring a 90. You're scoring a 90. Likewise, you are spending a 6 to 9 hours maybe in maths and scoring a 95. So this shows that your strength is SST because बहुत कम time में तुम जल्दी याद करके reproduce कर देते हो. Whereas maths, you are taking a longer time and at times ये भी होता है they may get 85 or something. So that is means कहीं ना कहीं हमें problem आ रही है. Then you need to corroborate with your physics marks in 9th, 10th. If you generally have a problem in maths, you will face some problem in physics. And it is very quite natural. A person cannot do everything. We cannot be specialist of everything. So therefore, we need to corroborate that biochemistry where learning is there. Are we good at that or are we good here? So that when it comes down or boiling to choosing something or eliminating something, then we may start going one by one. Now, good news in 12th is they have introduced in maths 2 option, basic and standard. So that is how I'll call it. Basic and standard maths has been introduced in 11th, 12th. So today we'll discuss the application along with various options, and we'll also discuss more which is suitable for girls first, being a girls' school. So I'll try to focus where all you can excel more. And now, as I said, there are no boundaries with girls going to Air Force. You can see a lot of movies coming up, Army. So those areas also are being touched upon. So, but keep in mind, हमेशा strength को interest बनाने की कोशिश करो. Interest को strength बनाने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. अब मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन मैं मैथ्स में जितना भी कर लूं मेरे से नहीं हो रहा. अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद है, we can spend that time on others and we will gain more because time is the most crucial thing for you. तो आपको ये देखना है कि ये important चीज है. Now we'll go ahead with some of the career options. Now we begin with science. This is the medical stream which we call. So now we'll be discussing with you some of the options along with the subjects. So now here, these are the options which are there, which I'll discuss. Now, what are the possible subjects you should choose ideally in this? Though NEP allows anything, but allowing doesn't mean it helps us. It should help us on what we are going. So there is hardly anything to choose in this options. ये तो हमारे लिए close हो जाते हैं. English, physics, chemistry, bio. These are closed options which we must have if we are going for a medical line. Now comes the interesting thing, the 5th option. जब हम team select करते हैं या कुछ भी करते हैं, what is my 5th option? Right? Now, maths is an all-time favorite. Maths is an all-time favorite option. Maths is an all-time favorite option, which a student should opt for in case they can, because that opens both the avenues and it helps in understanding physics better. But many people who have topped NET exam, they didn't have maths. So even that theory is failed. So it's not कि maths नहीं लेंगे तो खत्म हो जाएगा, पर ये 4 लेना है. अब इसके साथ ये 2 options बहुत अच्छे होते हैं, and in my opinion, this is a very good option if you go for a psychology. Now, why you go for a psycho? Because when you become a doctor, more than treating a patient, you have to treat his psychology. आज कोविड में क्या है, हम patient treat नहीं कर रहे, उसको psychology treat करनी पड़ रही है. The panic that is causing more problem than the real COVID. So you need to understand psychology of a patient. So if you have psychology as a subject, it will definitely add up to your medical science.
So this is one good option which children should definitely go. With psychology, you also have other options, psychologist opening up. And when you do your MBBS, you can be a psychiatrist. Today, you will not find many good psychiatrists. There's a lot of stress we all live in. अब तुम कोविड की वजह से देखना, within 2 years, what will happen? People going in depression, people requiring this psychiatrist assistance. Why? Because things have gone all 360-degree round. So we need mental strength. So that is where the picture comes. Psychiatrist will help. Now, home science, why I'm saying, because it deals with all about nutrition, this thing. So what happens once you choose this as an option, even dietitian is a big option that can come up. Now, why dietitian? Today, aap dekho, you go to any hospital, there is a big need of a dietitian. Without that, nothing is there. So I should choose my subjects in case something fails, I can go for that. So suppose I don't clear NET, I can do MSc in nutrition. I have a home science. I know everything about food. I can do hotel management. I can be a big chef. I can explain about food. I can be a dietitian. You can go for naturopathy. Today you can see how big Ayurveda has become due to Mr. Ramdev. How that industry has grown as an alternative. So choosing your subjects helps you a lot. So these are the basic ones. And last, why I go for economics. Many times, today one of the important topics being talked about is the economy, the GDP. हम इसकी बहुत बात करते हैं और economist का role साथ साथ है. So that is one thing that will be there in the picture. So choosing these combos has to be absolutely right. So if you're not very good at maths, you can choose as a sixth subject. Nobody is going to tell you anything. You can learn the basics जो physics में help करें, थोड़े बहुत vectors, calculus, और आप बाकी subjects पे ध्यान दे सकते हैं. लेकिन आपको subjects ऐसे choose करने हैं कि आप time दे. What happens with maths? It takes a lot of time. So out of 24 hours, किसी का time, some subjects time you'll have to devote to maths. So you have to choose it accordingly. Because if your focus is medical, कि मेरे को medicine में ही जाना है, then there's no point choosing maths, because then you're not keeping a second option and you're clear कि मुझे वहीं जाना है. तो then उसके साथ आप home science, psychology ये लीजिए and you will get a better option, right? Counseling, dietitian, nutrition, and there are a lot of options that come up with this. Now, when we go to this exam, obviously NET is the most common exam after 12th, which you take. And there was a time 3-4 years back, only 7-8 lakhs were there. Today, it is whooping 14 lakhs. 14 lakhs cross ho gaya hai. Most sought after medical option ho gaya hai. And today India, एक ही चीज की सब बात करते हैं, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, मेडिसिन. सबको ऑक्सीजन पता चल गई, सबको आइवरमैक्टिन पता चल गई, है ना? सबको डॉक्सी का नाम पता चल गया, सबको स्टेरॉइड्स, मेड्रोल का नाम भी पता चल गया. So medicine is something. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने नहीं सुना था भाई, आज सबको पता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. So medicine की इंपॉर्टेंस is going to be the most important in coming years. We need to boost up infra and doctors, and this is the stuff we need. So this is a very hot cake as an option. BDS अगर आपको आगे और हायर स्टडीज नहीं करनी, डेंटल में रहना है, आप BDS चूज कर सकते हैं नीट एग्जाम के थ्रू. नीट एग्जाम गिव्स यू चूजिंग साइकेट्रिस्ट, ये भी आपको है, ये सब डॉक्टर कहलाते हैं. आयुर्वेदा भी नीट के अंदर है जो ऑप्शन में आता है, प्लस कुछ स्टेट्स डायरेक्टली देते हैं. एंड वेरी सीन यू विल सी विद रामदेव डूइंग सो मेनी थिंग्स, देयर मे बी हॉस्पिटल्स as a separate thing coming up, and Ayurveda is growing like anything. And then homeopathy is not far behind, which we call as BHMS. Many states have direct admissions, so you can go for a direct admission also in it. So that is what homeopathy is, again a doctor program, and it is widely done. So today you don't need to even look at this only. You may have Ayurveda, homeopathic, psychiatrist, things coming up like that. You may go for physiotherapy. They are not doctors, they assist doctors. Rehabilitation program, ठीक है? तो इसमें कुछ जगह एंट्रेंस होता है, कुछ जगह डायरेक्ट पर, कुछ लोग अपना स्टेट एंट्रेंस लेते हैं, फिजियोथेरेपी में आप बन जाते हैं,
and then you assist a orthopedic or other doctor. It can be a neuro rehabilitation, it can be an orthopedic rehabilitation. इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पेशेंट की साइकोलॉजी से डील भी करते हैं और उनको अच्छी तरह ठीक करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द रिसर्च. आज के डेट में जो ये कोविड वायरस है, वायरोलॉजी जो स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैब में बैठ के यही काम करते हैं. टुडे दिस ऑप्शन हैज बिकम मोस्ट sought after this virus. You know, before there was sought after things, but now a new thing has opened up, the study of the virus, virology. So microbiology will go into this. You can do a BSc in microbiology and open up your career. हमारा नेट क्लियर नहीं होता यार, कोई एंड नहीं है, कोई लाइफ का एंड नहीं है. जरूरी थोड़ी हम डॉक्टर बन के ही करेंगे. सब डॉक्टर बन जाएंगे तो रिसर्च कौन करेगा, कौन आगे लैब्स में असिस्ट करेगा, और उस फील्ड को कौन ले जाएगा. So that is there, and will please keep writing your queries. I'll take it one by one once I have explained things. So then we can have that interaction platform where we'll take up the queries also. You can please note, because otherwise it will keep interrupting. That's why I'm telling we can have. Then you can have a dietitian course for which you just need to do BSc nutrition, and further you can go for MSc or other things. So dietetics course is required. So, and last is radiology. You know, अल्ट्रासाउंड. आज कोविड हो गया, क्या करना है, सीटी करना है, कौन करेगा, रेडियोलॉजिस्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा. सो इफ यू आर ए गुड रेडियोलॉजिस्ट, ultrasound has become one of the important areas. So again, it has a net, plus there are states which even have their own exams. So radiologists are the various options. So this I have talked about general options. There are other B pharma कर लेते हैं जो मेडिसिन की शॉप्स या इस पे जाना चाहते हैं, they get license with that. Right? So these are some of the options which we have at this level, and these are the subject combinations which you can choose. Right? These are the subject combinations which you can choose, and I have discussed with maths, home science, psychology. So these are few options which you should actually go and choose it. And home science में इसलिए कहता हूँ, इसमें भी आपके related चीजें हैं, because biology की knowledge है nutrition, और साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन. तो आप इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं while you are doing your MBBS also. So that helps. You know, mental strength today has become important even for a doctor, because patients panic like anything. So this is one important area, children, where we are there. So please note down option. I'll come back once I finish with each option. I'll discuss the things with you all. And as far as voice and other things are concerned, I think everything is okay. In case there is any problem in voice or this, please let me know. Next, we move on to non-medical. Now, this is again what we talk of as an engineering. और आज आपको मैं आर्ट्स में काफी डिस्कशन करके बताऊंगा कि आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं. ये तो बहुत कॉमन ऑप्शंस है. आज नॉन कॉमन भी हम डिस्कस करेंगे, खास करके गर्ल्स के लिए. अगर हमारे मैथ्स वीक है या हम मैथ्स से थोड़ा अलग जाना चाहते हैं तो हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं. यहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स मेन है. अब आ जाता है 5th. इफ यू हैव ए फ्लेयर एंड अ लाइकिंग फॉर कंप्यूटर्स, गो फॉर कंप्यूटर साइंस. दैट इज द बेस्ट विद दिस साइंस इफ यू कैन ऑप्ट फॉर. अब कंप्यूटर साइंस करिए, नहीं तो आप मैकेनिकल ड्राइंग ले लीजिए. मैकेनिकल ड्राइंग है, इट्स ऑल अबाउट जो आपकी ड्राइंग स्किल्स, मेकिंग द डायग्राम्स, ये वाला जो साइंस रिलेटेड है, दैट वुड कम देयर. फिजिकल एजुकेशन वो लोग लेते हैं जिनको लगता है यार हमें खाली इन्हीं में टाइम देना है, एंड वी डोंट वांट टू स्पेंड एनी अदर टाइम ऑन एनी अदर सब्जेक्ट. वो फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, एंड दे most of the students who take science never go for a physical activity or even take physical as a after. And economics is one of the best sought option with science. With science, if you do economics, because even now in all engineering colleges in first year you are taught economics, so obviously with economics this becomes again a better option, where you have your options open after class 12th for so many streams. You can go for a econ honors, you can go for other economics related lines where you can do very well. So science students do take economics as an option at many places. You have to check with the options with your school also, because with NEP so many options have come up. It is not necessary that you get each and every option everywhere, because finding a teacher is not easy.
biotechnology was one subject which CBSE introduced with lot of enthusiasm, but it has faded away. Not many schools have that option today, and not many teachers are available or students. And today biotechnology is up growing. आज आप देखो, अगर अब्रॉड जाना है आपको, तो बायोटेक्नोलॉजी से बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है. IITs में बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, चंडीगढ़ में कॉलेज में है, वहां पे है, कुछ स्टेट कॉलेजेस दे रहे हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी इज कमिंग अप. सो एज अ सब्जेक्ट, इफ बायोटेक इज अवेलेबल, वी कैन ऐड बायोटेक्नोलॉजी. आप पढ़ सकते हैं, लेकिन विद बायोलॉजी भी आप ले सकते हैं, वहां भी यहाँ भी. बायोटेक इज an ऑप्शन विच यू कैन टेक एनीवेयर. द मोस्ट सॉट आफ्टर थिंग इज इंजीनियरिंग. इतने ऑप्शंस है इंजीनियरिंग में जो मेडिसिन में नहीं आएंगे. Engineering has so many options, right from computers, electricals, electronics and communication, mechanical, chemical engineering, textile engineering. ठीक है ना, इतने सारे options होते हैं. Industrial engineering. So there are so many options with engineering. और seats भी medical से काफी ज्यादा है. So if you say of seats, engineering has much more seats. But today, since the job options are not coming great with the low grade colleges, so if you do with a good college, it is very good. But with engineering today, MBA has become order of the day. या तो आप engineering करके higher कुछ करने आप abroad जाते हैं उसको, या आप MBA करते हैं. खाली engineering करके अब काम नहीं चलता, क्योंकि MBA होने से your management and technical skills both comes, and that is what companies are looking at. Companies are looking at engineering plus MBA as the hot cake. और एक और है मेडिसिन के कंपैरिजन में. बच्चे हमसे कई बार पूछते हैं, सर पैसा कब आएगा, when will we start earning? हमें भी अपनी गाड़ी लेनी है, हमें भी अपना घर लेना है. तो भाई इंजीनियरिंग से जल्दी नहीं आ सकता. आप 4 इयर्स की इंजीनियरिंग करते हैं, 2 साल का MBA, और अगर आप गूगल करेंगे टॉप 100 परसेंटाइल 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, ऑल फ्रॉम IITs, मोस्टली इंजीनियर्स. सो मोस्ट इंजीनियर्स आर गेटिंग क्लियर्ड इन दैट. अब इससे ये नहीं है दूसरे क्यों नहीं है, दूसरे आते हैं 99 ये परसेंटाइल, और जो 100 परसेंटाइल है, मैथ्स का एडवांटेज और डाटा इंटरप्रिटेशन का एडवांटेज, लॉजिकल रीजनिंग जो पेपर होता है, अब हर एप्टीट्यूड टेस्ट में कॉमन होंगे, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, हेल्प्स. तो जेई मेन और एडवांस्ड. मेन आपको सबको देना होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें जो 2 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं कट ऑफ के बाद, दे टेक IIT के लिए. तो इस एग्जाम से आप खाली IIT में आ सकते हैं. ये सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं वहां पे आप आ जाएंगे. 8 to 9 lakhs दे रहे हैं, एंड दिस एग्जाम इज ऑनलाइन. मेडिकल एग्जाम हैज स्टिल नॉट गॉन ऑनलाइन, वो अभी भी ऑफलाइन है. और इस बार इंजीनियरिंग 4 times था, अभी 2 ही बार हुआ और पेंडेमिक में रुक गया. ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बहुत सॉट आफ्टर है. तो IITs प्लस सम अदर कॉलेजेस. वेलोर इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे तो इसमें वेलोर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश में. दैट इज स्पेसिफिकली फॉर AI एंड मशीन लर्निंग. आज की डेट में आर्टिफिशियल, अब तुम गूगल करते हो तो एक नाम डालते हो, बाकी ऑप्शंस पहले ही दे देता है. क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, आप मेल में कुछ सर्च करने के लिए डालते हो, वो सब कुछ सॉर्ट करके दे देता है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 5 years. सॉफ्टवेयर में कोडिंग अब 6th में डाल दी गई है स्कूलों में, तो कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, IT. और आप IT रिलेटेड जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन जरूर लिखिए, ट्रिपल IIT. अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, सो देयर इज ट्रिपल IIT. इसका दिल्ली और हैदराबाद दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. कई लोगों को ये पता नहीं होता. बच्चे अगर IT में कुछ करना है, वो IIT भी छोड़ देते हैं. So sometimes they leave IIT also. So triple IIT has colleges. हैदराबाद और दिल्ली का ब्रांच ज्यादा पॉपुलर है, भुवनेश्वर में भी है, बैंगलोर में भी है, एंड IT के लिए फेमस है. ट्रिपल IIT, इसमें 80% PCM बोर्ड में चाहिए, बाकियों में इतना नहीं चाहिए होता है, पर इन्होंने 80% और JEE मेन का स्कोर. So that is what artificial intelligence is all about, and it is the sought after course today with programming. आर्किटेक्चर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होता है. आज की डेट में आर्किटेक्ट्स
बहुत अच्छे नक्शे और सब कंपलसरी है कई जगह। तो इसके लिए आप जेई मेन देना जरूरी है। जेई मेन के थ्रू आप टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस में जाते हैं, और अगर आपने आईआईटी क्लियर कर लिया तो रुड़की का आर्किटेक्चर कई टाइम से फेमस है, यू कैन गेट एडमिशन। और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए नाटा का भी एग्जाम होता है, तो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये सब एग्जाम्स देके, पर जिनको आर्किटेक्चर ही देना है और इंजीनियरिंग नहीं देना, अब बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है, फिर आपको खाली मैथ्स चाहिए, और मैथ्स के साथ आप फाइन आर्ट्स ले लीजिए, जो ड्राइंग का पेपर है उसका हेल्प हो जाता है। फिर आपके पास इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तैयारी करने के लिए भी यू डोंट हैव टू प्रिपेयर देन, इफ यू आर फोकस्ड कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो आप मैथ्स और फाइन आर्ट्स और ये ले लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। देन यू डोंट नीड टू फोकस कि मुझे आईआईटी की कोचिंग करनी है या ये। विथ चेंज इन पैटर्न, कोचिंग के पैटर्न में भी चेंज आ रहा है। This exams will reduce to NCERT books and NCERT exemplars. That is what government is focusing in new education policy, less stress on difficult things. आज आईआईटी के पेपर में बहुत मुश्किल चीजें आती हैं, तो बच्चे आर फोर्स टू टेक कोचिंग। गवर्नमेंट का अब है कि हम टेक्स्ट बुक्स प्लस एग्जाम्पलर्स या ये देते हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी 2 साल के अंदर आईआईटी एडवांस्ड का एग्जाम कैंसिल भी हो जाए और जेई मेन कर दें, और जेई मेन साल में 2 बार या 3 बार का ऑप्शन जो वो सोच रहे हैं, दैट मे बी पॉसिबल। सो थिंग्स विल चेंज नाउ ग्रेजुअली, and within 2 to 3 months the notifications will start coming up as things become okay, as you see the COVID graph going down. Schools will reopen soon, don't worry even for that. 3 months down the line, with things settling down, because we haven't collected the data statistically. हमारा जो डेटा है वो कुछ करोड़ infected है, but in fact if you will see, more than 60 to 70 crores have got infected. Every house has got infected. So infection has now reached vast level. So definitely that is as good as a vaccine for us. So it will help us in combating this pandemic sooner or later, with herd immunity may come into picture sooner or later. पायलट का कोर्स भी कर सकते हैं। कुछ जगह एंट्रेंस है, डायरेक्ट है। इंडिया में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, सफदरजंग फ्लाइंग क्लब है, तो वो अपना एंट्रेंस लेते हैं, प्लस कुछ लोग डायरेक्ट, इवन यू कैन डू फ्रॉम अब्रॉड पायलट का कोर्स। पर ऐसे जेई मेन और एडवांस्ड के जैसे अलग से वो नहीं है कि जेई मेन देके हम आते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको आर्मी में जाना है, अगर अभी पिक्चर देखी हो जानवी कपूर की, तो एयरफोर्स के ऊपर बनी थी, तो एफकैट और एनडीए का एग्जाम होता है, उसमें आप दे सकते हैं। पास द ट्रेनिंग, यू विल बी आस्क्ड टू ज्वाइन। तो इसका 12th के बाद ही फॉर्म निकलता है एयरफोर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल तो वो लोग आपसे मांगेंगे ही, विजन, हाइट एंड दिस। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका बहुत लोगों को पता ही नहीं है, एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस पूरे इंडिया में खाली अभी तक 350 है, और फुल टाइम तो शायद 200 के नीचे ही होंगे। इनकी सैलरी बहुत हाई है, लेकिन ये पेपर क्लियर नहीं होता है, और इसकी एलिजिबिलिटी 12th के बाद शुरू हो जाती है। आज ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एज लिमिट नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सारा कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर से करते हैं। तो आईएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल इन इंडिया, और एक लंदन में है, यूएस में भी है, पर ज्यादातर लोग लंदन और इंडिया वाले से करते हैं। इंडिया वाला एंट्रेंस लेता है एक्चुरियल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, एक्चुरियल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। लंदन वाला एंट्रेंस नहीं लेता। इंडिया वाला एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको 15 पेपर्स लेने होते हैं, 15 पेपर। एंड आप समझ सकते हैं कि अगर 300 लोग क्लियर कर पा रहे हैं तो ये है। इसमें मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, तो जिनके पास मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, दे कैन गो फॉर इट। इसका पे पैकेज बहुत अच्छा होता है। सो इफ यू हैव ए गुड नॉलेज, तो साइंस लेके आपका एप्लीकेटिव दिमाग तो आप बन ही गए, और आप मैथ्स बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। 5 years मिनिमम टाइम है, 15 साल तक लोग बन जाते हैं। पर इसमें 15 पेपर्स क्लियर करने के बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो जैसे लोग 4 से 5 पेपर क्लियर करते हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस में ही चले जाते हैं और साथ साथ देते रहते हैं। यंगर यू स्टार्ट, बेटर योर चांस फॉर कन्वर्टिंग। पर क्यों नहीं है ज्यादा लोग? एक तो इसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, क्योंकि इट इज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। हमारे यहाँ इतनी इसकी इग्नोरेंस इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट भी इसको भी ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही, और थोड़ा टफनेस होने की वजह से लोग इसमें आगे नहीं आते। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप यंग एज पे ट्राई करेंगे, पे पैकेज बहुत हाई होगा, क्योंकि इसमें लोग ही नहीं है, और अब्रॉड में इसका स्कोप बहुत है, यूके में खास करके।
सो आफ्टर 12th यू कैन टेक द एंट्रेंस, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, एक दो सब्जेक्टिव भी होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस इज कंडक्टेड बाय ACET। रिसर्च में जाना आप IISc ले सकते हैं, IITs में भी जाके लोग रिसर्च करते हैं, DU में भी करते हैं, JNU में भी करते हैं। तो रिसर्च फील्ड है, आपको फिजिक्स में रिसर्च करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, यू कैन गो फॉर एनी दिस। एनी क्वेरी मैम? Okay. And then we'll go on with बायोटेक्नोलॉजी, जिसके लिए आप जेई मेंस दे सकते हैं, और एडवांस्ड और IIT बायोटेक्नोलॉजी की ऑप्शंस आपको दे रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इंजीनियरिंग, और जो इंजीनियरिंग लेते हैं वो कई और ऑप्शंस उनके लिए ओपन है, जो आज हम अब डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, और एक मर्चेंट नेवी का ऑप्शन है, और एक धनबाद में कोल माइंस है। दे आर ऑल थ्रू IIT। तो जिनको मर्चेंट नेवी में जाना है, एक तो इंडियन नेवी अपना एग्जाम करती है, और एक मर्चेंट नेवी मरीन्स के लिए जो है, अगेन यू कैन गो थ्रू जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। और गर्ल्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट धनबाद, कोल माइंस, वो ऑप्शंस बहुत अच्छे नहीं है। तो इसीलिए वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर यू कैन गो इज दिस आर्किटेक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छी होती है, आर्किटेक्चर है, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। दिस ऑल विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज, एंड दिस आर द सब्जेक्ट्स यू कैन ऑप्ट। एंड विद इकोनॉमिक्स आपका एरिया कॉमर्स का भी खुल जाता है, आर्ट्स का भी खुल जाता है। We'll answer all queries one by one, right? So I am seeing the chats. I'll definitely stay back and answer all queries. Now we come on to, yes, you can keep putting in the chat. I'll read the chat and answer one by one individually. आपसे मैं बात करूंगा। अब हम कॉमर्स में आ जाते हैं। अब कॉमर्स में आके ऑप्शन तो बहुत सारे निकलेंगे ही, क्योंकि आजकल हर फील्ड है। एक जमाना होता था लिमिटेड ऑप्शन होते थे, आज नाउ कॉमर्स में सब्जेक्ट्स क्या है? इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये ऑप्शन तो सबके लिए कॉमन आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बाकी पे। आईपी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, जो कंप्यूटर साइंस से कम होता है, जिसमें मैथ्स की इतनी नीड नहीं होती, तो लोग बच्चे आईपी भी ले लेते हैं। अब आ जाता है मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। देखो, कोर मैथ्स अगर है तो दैट इज स्टैंडर्ड लेवल। आपको कब कोर मैथ्स लेनी चाहिए? अगर 12th के बाद आपको इको ऑनर्स करनी है तो आप कोर मैथ्स लीजिए। आपको अगर कैट से कभी एमबीए करना है या सीए करना है तो आप कोर मैथ्स ले लीजिए। आपको लॉ का एंट्रेंस देना है, आप अप्लाइड मैथ्स ले लीजिए। आपको बीबीएस का एंट्रेंस देना है तो कोर मैथ्स, बीबीए देना है, होटल मैनेजमेंट देना है, मास कम्युनिकेशन देना है, अप्लाइड मैथ्स। लेकिन जो कोर है, अगर आपको डीयू से बीकॉम ऑनर्स करना है, इको ऑनर्स करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, और एक कोर्स है ग्रेजुएशन के बाद सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, आपके लिए मैथ्स कंपलसरी हो जाएगी। और अगर आपने कैट अटेम्प्ट करना है, आइडियली अगर आप ये मैथ्स लेंगे तो आपको थोड़ा सा उधर ये हेल्प मिलेगी कि हायर मैथ्स में स्ट्रगल नहीं करेंगे। वैसे कैट में ये मैथ्स नहीं भी होगी, ये होगी तो भी चला लेते हैं बच्चे विद गुड इंग्लिश एंड अदर ऑप्शंस। इसके साथ आप लीगल स्टडीज ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, और एनईपी तो अभी कहता है कुछ भी ले सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन जो एनईपी अब अलाउ कर रहा है, आप मैथ्स ले लीजिए, अकाउंट्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और अब मैं आगे आर्ट्स के जब ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, सो यू कैन हैव बोथ आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑप्शन ओपन। योर करियर स्कोप इंक्रीजेस, आपकी करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम करियर ऑप्शन देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी के लिए जाना है, कोर मैथ्स मत लेना, देयर इज नो नीड फॉर कोर मैथ्स। अगर कंपनी सेक्रेटरी करना है तो आप लीगल स्टडीज जरूर ले लीजिए। इफ यू आर गोइंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, लीगल स्टडीज जरूर ले लीजिए, दैट विल हेल्प यू ए लॉट। देयर इज नो पॉइंट टेकिंग आईपी और दिस अदर थिंग्स, राइट? सो and now most of the schools are giving choice with maths and applied maths. मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में स्कूल्स चॉइस दे रहे हैं, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कोर्स है। कोई 5 साल पहले अगर आप देखेंगे
हार्डली 10,000 लोग देते थे, नाउ इट इज 80-90,000 प्लस. सो क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. आज कॉर्पोरेट लॉ ने इतना ज्यादा इसको फायदेमंद कर दिया कि इतने ज्यादा लोग देते हैं. ये क्लैट होता है और एक आईलेट होता है. आईलेट दिल्ली के लिए है. क्लैट 22 यूनिवर्सिटीज इंडिया में है. बैंगलोर है, हैदराबाद है, जोधपुर है, कैलकाटा है, गांधीनगर है, और एक सिम्बाइसिस है जो अपना करता है. तो क्लैट में सारे कवर हो जाते हैं. एक दिल्ली वाला जो है वो आईलेट के थ्रू कवर होता है. ये दिल्ली के लिए अलग एंट्रेंस है. सो दिस आईलेट एंट्रेंस इज ओनली फॉर दिल्ली. क्लैट जो भी बैंगलोर और ये सारे लॉ कॉलेजेस हैं वो ले लेते हैं. अगर आपको एक्चुरियल साइंस जाना है तो आपको कोर मैथ्स लेनी है. आपको बीबीए का देना है तो कई जगह वो अप्लाइड मैथ्स चलेगा, यू डोंट रिक्वायर कोर मैथ्स. नारसी मोंजी देना है कोर मैथ्स. दिल्ली का ये डीयू जैट है, अगर डीयू जैट देना है तो कोर मैथ्स ले लेना, यू विल नीड कोर मैथ्स. लेकिन उसके साथ अप्लाइड मैथ्स की भी जरूरत पड़ती है, वो फिर आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है. होटल मैनेजमेंट अप्लाइड मैथ्स सबसे बेस्ट, एकदम सूट करता है होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए अप्लाइड मैथ्स. टीचिंग में डाइट, बीएड, अब बीएड भी 4 ईयर कर रहे हैं, सो अप्लाइड मैथ्स वुड बी गुड इनफ. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर ए आगे का टीचिंग एंड ऑल विथ हायर ऑप्शंस, देन ऑब्वियसली डिपेंड्स द सब्जेक्ट. पहले बीएड 2 ईयर था, अब प्रपोज्ड ये 4 ईयर हो रहा है, तो वेरी सून दे विल कम आउट. पर एज ऑफ नाउ 2 ईयर रेगुलर है, अब वो 1 ईयर ऑप्शन भी हटा दिया गया है. सो 2 ईयर में ये कर रहे हैं. ये एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ग्रोइंग है. आपने देखा होगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग. आज की डेट में ये ऐसी मार्केटिंग है, फेसबुक में ऐड कैसे चलाने हैं, करने क्या है, डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं. जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी जो कैंपेन चलाती है इनके थ्रू चलाती है. तो इसमें बेसिक कोर्स कर लें आप कहीं से भी, एज सच कुछ नहीं है, बट इसका पे पैकेज बहुत बढ़ रहा है. अब कंपनीज एचआर वाले सेपरेट वैकेंसीज निकाल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग. लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऑल टाइम हॉट. डीयू जेएनयू एंट्रेंस आप वहां से कर सकते हैं. आज की डेट में जब आप एमबीए करके फ्रांस जाते हैं, वहां फ्रेंच में बात करते हैं. तो अगर आपने कोई फ्रेंच लैंग्वेज कर रखी है तो कंपनी के लिए आप इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी हैं, और आपको फ्रेंच भी आती है, आप कंपनी का बिजनेस बढ़ा के आ जाएंगे. आज कम्युनिकेशन हम दोनों समझ पा रहे हैं क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज है. कॉमन लैंग्वेज नहीं होती तो मुझे एक इंटरप्रेटर खड़ा करना पड़ता. सो दैट वे थिंग्स वुड हैव चेंज्ड. सो दिस आर फ्यू ऑफ द ऑप्शंस which commerce options students have. तो आपको मैं अभी और कॉमन एंट्रेंस इनके साथ डिस्कस करूंगा, आर्ट्स आ जाए. ये कुछ ऑप्शंस है जो हम एज ए कॉमर्स ले सकते हैं. इसके अलावा भी है कोडिंग, जैसे आप कर सकते हैं. अगर आपके पास मैथ्स है आप पाइथन वाइथन सब करिए, और कोडिंग करनी चाहिए. जितने भी कॉमर्स है आप फ्यूचर में जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक लैंग्वेज करना शुरू कर दीजिए. तो अगर आपके पास मैथ्स है यू कैन डेफिनेटली डू. अब हम आ जाते हैं आर्ट्स. आर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं. ये बहुत ही मेरा फेवरेट है. मैं तो कहता हूं आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जितने आईएएस बनते हैं सब आर्ट्स के सब्जेक्ट से ही तो बनते हैं. यूपीएससी में आर्ट्स के सब्जेक्ट सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर है. तो जब आपको यूपीएससी एग्जाम देना है या ये करना है तो भाई सब्जेक्ट काउंट करता है. तब साइंस वाला भी साइंस के सब्जेक्ट्स मेन में नहीं लेता, वो भी इन्हीं में से लेके करता है. अब आइए देखते हैं क्या ऑप्शन इसमें है. अब आप देखिए इसमें इंग्लिश तो खैर रहेगी रहेगी. अब कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पोल साइंस का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, लीगल स्टडीज का. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट क्योंकि ये 12th के बाद आपको बहुत करियर ऑप्शंस दे देते हैं. और जो बच्चे मैथ्स या ये नहीं होता उनके पास भी बहुत वेन्यूज खुल जाते हैं. मास कम्युनिकेशन का वेन्यू खुल गया. आप इंग्लिश ले लीजिए, आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं. आपने न्यूज में देखे होंगे सो मेनी पीपल, जर्नलिज्म नाम है, टीवी में देख देख के अंजना ओम कश्यप देखते हैं आप, रवीश कुमार जी को देखते हैं. There's so many, people who are there. Barkha Dutt was there. So all of them have come out of this journalism, mass communication, and are arts students.
सुधीर चौधरी का नाम सुना होगा जी न्यूज में, उनकी पे पैकेज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई गेस कर सकता है हाउ मच सुधीर चौधरी गेट्स जी टीवी में पे पैकेज? 25 lakhs per month, a whooping 25 lakhs per month. So don't see that arts is this, arts is the sky. So history, geography, pol science, sociology, psychology, legal, entrepreneurship, maths, applied maths, fine arts, economics. सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे? हमें चूज करियर करना है, सब्जेक्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली आएंगे। आइए हम देखते हैं हमें क्या लेना है। मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो AIED, निफ्ट, NID, पर्ल, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है और ज्यादातर ये 2 या 3 होते हैं। एक में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक सिचुएशनल टेस्ट होता है। तो जनरली ये लोग 2 टेस्ट लेते हैं और एक थर्ड होता है। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या हेल्प करेंगे? फाइन आर्ट्स आपको लेना ही लेना है, दिस इज समथिंग वेरी गुड। और मोदी में तो बहुत अच्छा इसको कराया भी जाता है और बहुत आर्ट्स में मैंने देखा है कि हर ही सब्जेक्ट में टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा कराया जाता है। फाइन आर्ट्स अगर आप ले लेते हैं तो एक सब्जेक्ट तो फाइन आर्ट्स चला गया, इंग्लिश चला गया, 2 तो हमारे लिए ये हो गए। अप्लाइड मैथ्स ले सको तो ले लो, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। तो आप इंग्लिश ले लो, अप्लाइड मैथ्स ले लो, फाइन आर्ट्स ले लो, इकोनॉमिक्स अगर मिल जाए इकोनॉमिक्स ले लो, उसके साथ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या एनी अदर सब्जेक्ट विच हेल्प्स यू, यू कैन गो फॉर दैट, राइट? सो फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट तो यहां से हम ले लेते हैं, इंग्लिश यहां से ले लेते हैं 14, क्योंकि फैशन इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, हाउ यू गो अहेड, ठीक है? निफ्ट अगर आप करेंगे तो बैचलर ऑफ डिजाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 2 कोर्स है। तो अगर फैशन टेक्नोलॉजी जाते हैं तो खाली आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, लेकिन हाँ अगर डिजाइन में जाते हैं तो आपको बाकी टेस्ट भी देने पड़ते हैं। तो इट इज मोर ऑफ दैट। सो विथ इंग्लिश, सो आई एम सेइंग कि आप इसके साथ एक ऐसा चूज कर लो, साइकोलॉजी ले लो, काउंसलिंग फील्ड में चले जाओगे, ठीक है? सोशियोलॉजी ले सकते हो आप लोग, दूसरा ऑप्शन भी ओपन अप कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज। और अगर आप क्लैट भी साथ दे रहे हैं तो फिर मेरे ओपिनियन में है आप इकोनॉमिक्स ले ले, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, यू कैन टेक अप्लाइड मैथ्स, फाइन आर्ट्स 2, पोल साइंस और लीगल स्टडीज और इंग्लिश, बहुत बढ़िया बन जाएगा। क्योंकि पोल साइंस, लीगल स्टडीज लेते ही लॉ का जो पेपर है अब केस स्टडीज देने लग गए हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। अप्लाइड मैथ्स भी लॉ में भी आएगा, निफ्ट वाले में भी आता है कॉन्ट्रॉन्ट, फाइन आर्ट्स उधर आ जाएगा। सो दिस कॉम्बिनेशन विल मेक यू वेरी गुड। और फिर you can always go ahead and do in field of law or fashion. So if you're keeping your options open, that way you can choose the subject. आप अपने subjects का combination बना सकते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में जा रहे हैं, अब इंटीरियर डिजाइनर और फैशन में क्या है, फैशन की तो डिग्री मिलती है, इंटीरियर डिजाइनर के डिप्लोमा कोर्सेज से लेके होते हैं। सो कई इंस्टीट्यूट डायरेक्ट लेते हैं, कुछ एंट्रेंस लेके 6 महीने का, 1 साल का इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स दे देते हैं। फैशन इज मोर वाइड, आपको खाने के बारे में भी होता है व्हेन यू एक्चुअली डू दिस कोर्सेज, टेक्सटाइल्स में भी है, सो टेक्नोलॉजी का भी यूज है। सो इट इज अ मच बेटर कोर्स। इंटीरियर डिजाइनर्स जो आर्किटेक्ट होते हैं तो ब्रॉड वो करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स आपके घर की लुक को बढ़िया बनाते हैं। सो दैट इज अ कोर्स विद फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स आप लोगे तो दैट विल हेल्प। इकोनॉमिक्स में आपको कुछ भी करना है तो ऑब्वियसली मैथ्स लेना है। अगर बीए इको जाना है तो मैथ्स अगर आपके पास है विद आर्ट्स तो दैट विल हेल्प। सो डीयू से अगर दिल्ली का जो सोट आफ्टर कोर्स है इकोनॉमिक ऑनर्स, अगर आप एलएसआर, एसआरसीसी कहीं भी लोगे आपको इको ऑनर्स नहीं मिलता। और अभी जो लॉ चल रहा है आपके कोई परसेंटेज डिडक्ट नहीं होती, लेकिन अगर मैं साइंस से इको ऑनर्स करने आता हूं तो जो सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है उसके परसेंटेज डिडक्ट होती है। तो आर्ट्स लेके आपको एडवांटेज है, इको ऑनर्स में डीयू में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स करते हैं ऑब्वियसली मैथ्स इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन, उसके साथ आप इंग्लिश। अब बाकी 2 सब्जेक्ट हैं, आप कोई भी सोशियोलॉजी ले लीजिए, साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज, मैं तो कहूंगा फिर आप लीगल स्टडीज भी साथ ले लीजिए। सो लॉ का ऑप्शन खुला रखो, क्योंकि आज की डेट में लॉ इज कमिंग अप लाइक एनीथिंग।
तो आप वो ऑप्शन कर सकते हैं। लॉ, क्लैट प्लस आइलेट, एकदम मैंने आपको बताया कि आर्ट्स वाले बच्चे क्लैट इसमें जा ही सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में जाना है तो होम साइंस अगर आपके यहाँ ऑप्शन है, आप होम साइंस ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको होम साइंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। होटल मैनेजमेंट में होम साइंस एज एन ऑप्शन विल हेल्प यू, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स, इफ यू रियली आर लुकिंग फॉर ए होटल इंडस्ट्री, द न्यूट्रिशन एंड दैट। पहले एक होता था खाली साइंस वालों को देते थे, पर अब होम साइंस लेके भी आप इस फील्ड को कर सकते हैं। टीचिंग अगेन, you can have the entrance thing and direct this. गर्ल्स के लिए टीचिंग इज वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर जॉब, और आप बीएड करके किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन, एमएससी, एमए, ये सब करके आप टीचिंग लाइन में आ सकते हो। प्लस यू कैन बिकम लेक्चरर, नेट का एग्जाम दे सकते हो, दो नॉट कंपल्सरी अब, ठीक है ना। अब तो फिलोसॉफी भी हटा दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप डायरेक्टली एमए करके पीएचडी कर सकते हैं। आप कॉलेज ज्वाइन करके 2 साल बाद कॉलेज छोड़ के आगे कुछ और करके देन यू कैन ज्वाइन बैक कॉलेज एंड डू। सीए के बच्चे तंग में रहते थे, इंटर्नशिप करनी है, कॉलेज के साथ कैसे करें। अब आप 2 साल करिए, डिप्लोमा ले लीजिए, अपना स्कोर आपका इंटैक्ट रहेगा, आप अपना इंटर्नशिप करिए, फिर आके आप अपनी कॉलेज की स्टडीज पूरी कर लीजिए। फिर आप मेजर और माइनर कर सकते हैं, मेजर किसी में कर लिया, माइनर में आपने दूसरी एक फील्ड चूज कर ली। सो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन इंडिया, और जब ये एनईपी पूरा लग जाएगा देन यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये तो कहते हैं कि भाई एक कॉमर्स स्टूडेंट को फिजिक्स लेना है तो लेने दो, वो मैथ्स ले ले, फिजिक्स ले ले, अकाउंट्स ले ले, इको ले ले। आर्ट्स वाले को भी कहते हैं पढ़ने दो, अगर तुम इसको पायलट बनना है तो मैथ्स फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। तो एज ए आर्ट स्टूडेंट तुम्हारे पास मैथ्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। नाउ कम्स एनी टू कॉम्बो, यू कैन गो फॉर आर्ट्स, यू कैन गो फॉर एंट्रेंस ऑफ साइंस, एंड मैथ्स फिजिक्स है, इंजीनियरिंग सारे हो जाएंगे, केमिस्ट्री जरूरी नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से देखो चीजें कितनी बदल गई। मेरे पास आर्ट्स भी है, मेरे पास साइंस भी है, और कॉमर्स कैसे कर सकता हूं, मैंने मैथ्स ले ली, अकाउंट्स ले ली, फिजिक्स ले ली, मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स 3, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश लिया, मैं स्टूडेंट बन गया भाई आर्ट्स का, मेरे पास इको है। मैं स्टूडेंट बन गया कॉमर्स का, मेरे पास अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से, बिजनेस स्टडीज की जरूरत नहीं है। So these things will change the dimensions very soon, and right now schools are not all equipped for this, because abhi to shuruaat hai, we are not even clear, but once these things become clear, such a nice thing, फिर हम तीनों में हैं और हम तीनों कर सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं। तो sooner or later these things will start coming, but right now till they come into actual practice, I'm discussing these options. Entrepreneurship, it's all about managing business. एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस की मैनेजमेंट करता है। आप पीआर का कोर्स कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, ठीक है ना। हर कंपनी में पीआर होता है जो कि ग्रीवियंसेस डील करता है। तो दिल्ली में जैसे यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, वो ये सब कोर्सेज रन करता है। इंग्लिश ऑनर्स बहुत हेल्पफुल है इफ यू वांट टू गो फॉर मास कॉम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर डूइंग कम्युनिकेशन कोर्सेज। जर्नलिज्म इन गार्गी कॉलेज, अब हम जर्नलिज्म की भी यहाँ कहीं ना कहीं बात करेंगे। तो जर्नलिज्म है, काउंसलिंग है, एयर होस्टेस फ्रैंकफिन वगैरह कराते हैं। इफ यू हैव फ्लेयर फॉर फ्लाइंग, गोइंग अब्रॉड, तो यू कैन गो इनटू दैट। आपको काउंसलिंग करना है भाई, साइकोलॉजी जरूर ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, ये दोनों कॉम्बो ले लोगे, आपको काउंसलिंग के कोर्स में बहुत हेल्प मिलेगी। हर स्कूल को काउंसलर चाहिए आज की डेट में। आजकल काउंसलर्स वेरियस लेवल में, साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर हो गए, पर सिंपल काउंसलिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट मेनी लेवल्स, तो इसकी जरूरत बहुत है। तो आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जरूर ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर हम इसमें जाना है। आप बीए साइकोलॉजी करके आगे कर ही सकते हैं। जर्नलिज्म में जाना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट विच इज डेफिनेटली नीडेड। पोल साइंस ले लीजिए, क्योंकि आप जर्नलिज्म में जाएंगे, पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते, पोल साइंस की स्टडी करना। सोशियोलॉजी ले लीजिए, सो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। जर्नलिज्म में ये सब आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आर्ट्स में आ जाते हैं। अब हमारे को एक चीज और समझना है, ये कुछ पेपर्स हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने ये जो लॉ, बीबीए, एचएम, मास कॉम, बीएफएस, फैशन, इन सब में लिखा है, इन सब में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 1 2 3 4 5
ये 5 ऑप्शन एग्जाम्स में आते हैं. दिस 5 ऑप्शंस कम एज एन एग्जाम. तो अब आप ये देखेंगे कि ये 4 ऑप्शंस सब में होते हैं मोर और लेस. तो मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूं, चाहे किसी भी एग्जाम की, 80% ऑलमोस्ट इज कॉमन. तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं अगर ये 4 पेपर प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे खाली एक एडिशनल करना है. तो जैसे आप लॉ करते हैं तो ये करेंगे मैथ्स अप्लाइड, 10th लेवल जब मैंने बोला अप्लाइड मैथ्स. और इसमें जो ऑप्शनल पेपर है वो लीगल एप्टीट्यूड. इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू टेक लीगल स्टडीज, राइट, लीगल स्टडीज. मैं क्वेरीज अभी आप सबकी लूंगा बच्चों. आई एम जस्ट ओके, वन बाय वन आई विल आंसर. बीबीए मैं दिल्ली का बात कर रहा हूं. इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ना के बराबर. जनरल नॉलेज, बिजनेस एप्टीट्यूड. अब बिजनेस एप्टीट्यूड में क्या पूछेंगे? हु इज द चेयरमैन ऑफ टाटा कंपनी? हमाम इज सोप ऑफ विच कंपनी? कनेक्टिंग पीपल इज पंच लाइन ऑफ विच दिस. तो आपका बिजनेस की नॉलेज कितनी है? जैसे अभी मैं पूछूंगा करीना के बच्चों का नाम क्या है, तो मुझे तो पता नहीं है क्या है, लेकिन तुम्हें जरूर पता होगा करीना का बच्चा 1 का नाम क्या है, बच्चा 2 का नाम क्या है, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है ना करीना के. तो इसी तरह वो बिजनेस के बारे में पूछते हैं. ठीक है बच्चों. फिर हम आते हैं होटल मैनेजमेंट. इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल, सर्विस एप्टीट्यूड, सर्विस एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड. तो इसमें अगर होम साइंस हो तो हमारे को हेल्प मिलती है, एनी डे हेल्प मिलेगी. अगर आप होम साइंस ले लेते हैं, आज यूट्यूब पे देखो कितनी वाइफ्स, हाउस वाइफ्स चैनल चला रखा है डाइट का, रेसिपी आती है और उनके व्यूज लाखों में है. दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर ऑल्सो, दे आर फेमस. चटोरी कटोरी, देयर आर सो मेनी लेसन्स और सब लोग देखते हैं. और इस पेंडेमिक में तो यूट्यूब की बल्ले बल्ले थी. सब लोग देख देख के बनाते थे, नई नई डिश घर में बनती थी, है ना. तो आप ये काम कर सकते हैं. मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश एप्टीट्यूड. मोर ऑफ जर्नलिज्म से ज्यादा मास कॉम में इंग्लिश एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है. सो दैट इज व्हाट इट इज देयर. ये बीएमएस और बीएफआई डीयू का कोर्स है, जहां पे 12th की मैथ्स आपको लेनी पड़ेगी. बिजनेस एप्टीट्यूड आ जाता है. और अगर हम फैशन में चले तो इसमें फाइन आर्ट्स का पेपर आपसे पूछा जाता है. तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है. सिचुएशन देते हैं, आपकी स्किल्स चेक करते हैं. तो दैट इज देयर. जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश तो रहेगा. क्वांटिटेटिव बहुत ज्यादा नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं. तो मैथ्स में आपको बेसिक मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो चीजें हैं, बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं. दैट इज नथिंग मच, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस. सो एज अ साइंस स्टूडेंट जिसके पास पीसीएम है, वो सारे एंट्रेंस ले सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी है. लेकिन मैं आज आपको एक चीज का स्ट्रेस करूंगा. इसके अलावा अगर आपने फ्यूचर में आईएएस का एग्जाम देना है, बैंक पीओ का एग्जाम देना है, एसएससी का देना है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम देना है, कुछ भी देना है, मैं अपने हर करियर सेमिनार दोबारा बोलना, तेरा मुंह पे मार रही हूं मैं. एकदम जाके चिल्लाने लग जाती हो आप. हर करियर सेमिनार्स में हम ये बोलते हैं, प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इन क्लास 11th एटलीस्ट. प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. आप अगर ये करेंगे, आईएएस आप क्लियर ना हो मुझे बोल देना, कैट अगर आप क्लियर ना हो आप मुझे बोल देना. क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जनरल नॉलेज आप एक दिन में, 2 दिन में कोचिंग लेके इंप्रूव नहीं कर सकते. यू हैव टू रीड रेगुलर न्यूज़पेपर. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट का पेपर उठाओ, अभी भी देखो आरसी बढ़ा हुआ है. रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो कैसे एग्जाम करोगे? कोचिंग से क्या करा दूंगा मैं? कोई भी नहीं करा सकता भाई. न्यूज़पेपर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है. वोकैबुलरी पढ़ते पढ़ते ही इंप्रूव होगी. आज से अगर आप रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, बिलीव मी, 2 साल के बाद तुम मुझे ढूंढोगे थैंक यू बोलने के लिए, सर हमें तो ये सब आता है, ये क्या पूछा इन्होंने, तो सब केक वॉक था, हमें आता है, ये तो एवरीडे हम पढ़ते हैं, तो हमें रोज का काम है. जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, रेगुलर लहसुन खाओ, ये खाओ, वो करते ही आ रहे हैं.
आज उनको कोविड में भी देखो ओल्ड एज वाले कई लोग हैं बड़े तंदुरुस्त है. व्हाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द बेसिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. न्यूज़पेपर हिंदू जरूर पढ़ो, यू कैन टेक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल. एक बिजनेस का कोई ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स ले लो, चाहे से एडिटोरियल्स निकाल के पढ़ो. और आप एक वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड का आता है वो पढ़ो, और इंडिया की न्यूज आती है, और एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आता था CSR, तो वो आप ले लो. कोई भी ऐसी किताब लेके आप रेगुलर बेसिस पे करो. आपका एंट्रेंस में ना हो तो बताना, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे एग्जाम्स एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट आ रहा है. DU में भी इस साल तो रुक गया बिकॉज ऑफ कोविड. दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये टेस्ट आएगा, और अगले साल पक्का आएगा, क्योंकि DU इज फेड अप विद CBSE. भाई ये रिजल्ट नहीं निकालते, हम अपना एडमिशन नहीं कर सकते, तो अब वो भी अपना एडमिशन क्राइटेरिया निकालते हैं. सो चिल्ड्रन, योर आर्ट्स वालों को तो नो अदर ऑप्शन देन रीडिंग न्यूज़पेपर. रोज 1 घंटा कम से कम, बी ए वोरेशियस रीडर एंड सी द डिफरेंस. यू विल एक्सेल लाइक एनीथिंग. दिल्ली टाइम्स नहीं पढ़ना है, रेगुलर पेपर पढ़ना है, नॉलेज अपडेट रखनी है, वोकैबुलरी सीखना है. शशि थरूर देखिए कैसे कैसे वर्ड्स लेके आते हैं. ये आपको रेगुलर करना है, चाहे कुछ करें चाहे नहीं करें. दिस इज वन एडवाइस फ्रॉम मी. एंड आप IAS चाहे कभी बैंक PO कुछ भी देंगे, ये रीजनिंग ये आपके लिए ऑर्डर ऑफ द डे बनना है, इसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं, करते हैं. अभी इसमें डिस्कशन बहुत है, लेकिन देखो वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. दिस वाज अ ब्रॉड गाइडलाइन आउटलाइन फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन, दिस, so that at least you have an overview. बाकी स्पेसिफिक्स होगा, we can now conduct later on कि हाँ जिसको अब साइंस ही लेना है उनके लिए मैं अलग कर दूंगा, उनसे खाली साइंस की बात करके करेंगे. जिसको कॉमर्स लेना है हम कॉमर्स के लिए फिर पूरा एंट्रेंस में क्या होता है we will talk about that. एंड जिसको ये हो जाए, ये एक ओवरव्यू था जहां पे हमने इसको डिस्कस किया. अब मैं कुछ क्वेरीज देख रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू टेक अप दोज queries and answer this. Right now I'll come one by one, just give me few minutes. There have been some chats. So Kavita writes, sir, what to do if I want to go with arts but also have interest in business? Now Kavita, you can take accounts along with arts. So what happens is आपको खाली accounts ले लो, रिको ले लो, and arts के subjects ले लो, तो आप दोनों में cover up हो जाते हो. And hopefully I think schools may introduce this option, which is very feasible and viable, accounts और arts का option. So उससे आपका एक काम हो जाता है. नहीं तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हैं, आप कोई भी कविता एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जो कि BBA है, BMS है. इसके लिए खाली आपको देखिए 12th में मैथ्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो अप्लाइड मैथ्स से भी आप बहुत सारे एंट्रेंसेस कवर कर सकते हैं. प्राची says non-medical field is science only or it's different. Non-medical beta, it is basically engineering, PCM. So it is science field only, and which I am taking mad, non-mad, and that. Science को हम दो में divide करते हैं, medical, non-medical, और दोनों भी है if you can take. So that is there. Ma'am, biotech as a career is now coming up with lot of things, the research part, the lab part, and many engineering colleges have started this course, and IIT is the leading one. IIT Guwahati, IIT Delhi, all IITs have offered biotechnology. In Chandigarh colleges, you will find biotechnology. So biotech is a upcoming subject in which ये जो लैब में टेस्टिंग होती है बच्चों, तो जितनी भी टेस्टिंग के रिजल्ट और ये इन्फर करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं. कि भाई जो ब्लड सैंपल दिया, अब ये कोविड का भी है, तो दिस इज ऑल बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी इज रिसर्च ऑल्सो, आप assisting the scientist also, and it is all about your high machines, artificial intelligence. अब तुम देखोगे जब तक 5 साल होगी, ऐसी मशीन्स आएंगी टेस्ट करने की कि जिसमें आपके लिए नॉन इवेजिव प्रोसेस हो जाएगा. तो वेरी सून यू विल फाइंड कैंसर, हार्ट एंड दिस ऑल बीइंग टेस्टेड देयर. दिया वांट्स टू नो मोर अबाउट IAS. दिया, IAS का पेपर जो आप दे सकते हो, ये आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो,
और इसके अंदर आपको एक तो प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है और प्रीलिम्स के बाद मेंस के पेपर देने पड़ते हैं। प्रीलिम्स सबका कॉमन होता है, मेंस में आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, पर मोस्ट पीपल प्रेफर आर्ट सब्जेक्ट बिकॉज दे आर इजी टू स्टडी एंड डू, एंड देन यू कैन definitely clear it more easily. For IAS, you have to be a voracious reader. Your knowledge has to be good. Your application of mind has to be very good. They will ask each and every question which relates to intelligence. So इसीलिए IAS is not about just this. It is all about your aptitude, thinking. ठीक है, अब आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक प्रोसेशन जा रहा है मुस्लिम्स का हिंदू एरिया से, आप डीएम है उस इलाके के, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे सब पीसफुली निकल जाए? So there they will try to test your knowledge, your this things. तो आईएएस का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम्स। तो आईएएस आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रिपरेशन आप अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये पेपर्स देखें, जनरल अवेयरनेस ये उसमें आएगा ही आएगा। योर इंग्लिश हैज टू बी वेरी गुड, मैथ्स का कैलकुलेशंस होता है। देन अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आप उसके पेपर्स एकदम दे सकते हैं उसके अंदर। Trisha says, does our school provide choice? Yes, Trisha, your school provides choice between core maths and applied maths. Sir, is our school applying NEPI legal and wanting to pursue CS? I think CS company secretary के लिए legal studies choice मिल जानी चाहिए, but you will have to talk to school beta. Prachi, what about commerce with maths or without maths? Again, I said commerce विथ मैथ्स बेटर ऑप्शंस देता है, लेकिन आपकी अच्छी नहीं है, आप अप्लाइड मैथ्स ले लीजिए, आपके पास काफी कुछ ऑप्शंस फिर भी खुले रहेंगे। और मैथ्स नहीं कर सकते तो मैंने ऑप्शंस डिस्कस किए ही हैं आपको कि विदाउट मैथ्स भी आप देखिए 10th लेवल की मैथ्स पे आप कितने एंट्रेंस दे सकते हैं। कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स में अप्लाइड मैथ्स इज अ लाइटर वर्जन ऑफ मैथ्स, व्हेन इन कोर मैथ्स यू स्टडी हार्डकोर कैलकुलस, विद दैट हार्डकोर कैलकुलस इज नॉट देयर। अप्लाइड मैथ्स वो मैथ्स है जो आपको ज्यादातर रिलेट करेगा पर्सनल जो बिजनेस में यूज्ड होता है, और एक एज ए स्टैटिस्टिक्स करियर भी अगर आपके पास कोर मैथ्स है आप आगे जा सकते हैं, लेकिन अप्लाइड मैथ्स में आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स का भी यूज है, रीजनिंग का भी यूज है। तो जितने एंट्रेंस यहां मैंने लिख रखे हैं बेटा, ये एंट्रेंस एग्जाम्स अप्लाइड मैथ्स से बेटर है। खाली ये बीएमएस बीएफआई लेवल, लॉ, बीबीए, मास कॉम, इन सब में अप्लाइड मैथ्स आएगी। सो अप्लाइड मैथ्स इज ऑल्सो वेरी गुड। कॉमर्स में विथ मैथ्स इज ऑलवेज यूजफुल। कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स, अब एज सच अकाउंट्स आपको लेना ही लेना है, बाकी तो हम सब चॉइस करते रहते हैं, इको और एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना। इंग्लिश और अकाउंट्स ले लेते हैं क्योंकि वो तो एज ए कॉमर्स आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। Avini, I'll give you the arts chart again, don't worry. I'll also share the PPT. I couldn't discuss now. आज टाइम बहुत कम था, नहीं तो मैं पीपीटी भी अभी थोड़ा सा एक रन थ्रू कर दूंगा। What if my child goes with subject combination of blueberry? I'm not getting your question because it is incomplete. अनन्या, start reading newspaper अगर आपको यूपीएससी के लिए करना है, ठीक है। यूपीएससी के लिए आप न्यूज़पेपर्स में वेरिड सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। Subject combination of legal studies. What my child goes, still blueberry, the history, pole science, English. See, with legal studies, pole science is a perfect combination. English and do take applied maths if you can take. Otherwise, any combination would be good now for law. साइकोलॉजी अगर आप होम साइंस के साथ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब नहीं, अगर आप साइकोलॉजी में होम साइंस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और सोशियोलॉजी को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा आउटपुट आ जाएगा। हो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी डज मेक। अनुष्का, CFA is a internationally recognized course and it is taken only after graduation. आपको ग्रेजुएशन के बाद पेपर्स क्लियर करते जाने होते हैं उसमें, और वो वर्ल्ड वाइड, इंडिया में जैसे सीए है उसके बाद CFA बाहर के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर हमें बाहर जाके काम करना है, CFA की वैल्यू है, पर हम वो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं।
Yes, economics with PCM is a very good option. You can always take for that. UPSC exam difficult. I want to become an IFS. आप जब UPSC क्लियर करेंगे, IPS, IAS, IFS, वो सब उसी में से ब्रांचेस मिलती हैं रैंक के बेसिस पे. इकोनॉमिक्स लीजिए CFA के लिए. शिवानी, इज इट नेसेसरी टू टेक? नो नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. अप्लाइड मैथ्स इसीलिए आया निफ्ट एंट्रेंस के लिए, बाकी निफ्ट में ज्यादा मैथ्स आती नहीं है. आप अप्लाइड नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा. बीकॉम LLB, बीकॉम LLB अलग है. BA LLB कोर्स होता है, बीकॉम LLB कोर्स नहीं होता. तो LLB इज ए 3-year कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन. इफ यू वांट टू डू लॉ आफ्टर 12th, क्लैट लेना पड़ेगा. नहीं तो आपको LLB करनी है तो वो 3 साल के बाद है. आप बीकॉम ऑनर्स करके LLB के लिए एलिजिबल है बच्चे. Trisha, so people who are unsure about what they want to do, should we take core maths or applied? Trisha, आप unsure हो, ठीक हो, लेकिन अब आपको कुछ ये दिखाना होगा कि मुझे इको ऑनर्स करना है कहीं, तो फिर कोर मैथ्स लेनी है. आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, कोर मैथ्स लेनी है. आपको IIM टारगेट करना है कभी, कोर मैथ्स वुड बी हैंडी. नहीं तो अप्लाइड मैथ्स भी बहुत अच्छा कोर्स निकाला है CBSE ने, दैट इज देयर. Sakshi, if your CBSE basics are very strong, you can clear JEE mains even without coaching. अगर आप NCERT एग्जाम्पलर अपने आप कर लेते हो तो आप JEE मेन क्रैक कर लोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. और मेडिकल एंट्रेंस में तो पूछ ही NCERT रहे हैं, they have reduced their levels. Varsha sir, our school has given us option between economics and political science, but and children, we are sharing a feedback form. Please आप उसको भर भी देना. 1 मिनट. अनुष्का, just a minute children, just a minute.